Hello everyone. So in this video, we have to solve a problem to find the second maximum element in a given array. Now suppose हमें एक integer array given है that contains the elements 1, 3, 4, 2 and 7. And now in this array we have to find the second maximum element. So इस array के अंदर this is the maximum element, right? And this element is the second maximum एलिमेंट. सो हमें सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट को ही फाइंड करना है और रिटर्न करना है एज अ आंसर. एंड अगर गिवन एरे में कोई भी मैक्सिमम एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, इन दैट केस वी हैव टू प्रिंट डज नॉट एग्जिस्ट. और वो केस कब होगा? वो तब होगा या तो एरे में एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है या फिर एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेम हैं. ओके, सो इन दैट केस देयर विल बी नो सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट present in that given array. So we have to print does not exist. So now the first approach that comes to our mind to solve this problem is कि हम इस given array को descending order में sort कर लें, right? So if we sort this given array in the descending order, we will get the elements like this. Now after sorting this array in the descending order, so जो भी element 0 index पे पड़ा होगा that will be the maximum element, right? एंड वी कैन से दैट कि जो भी एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा होगा दैट विल बी द सेकेंड मैक्सिमम एलिमेंट. ओके, बट इफ वी थिंक केयरफुली दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट. हम ये नहीं कह सकते कि जो भी एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा होगा दैट विल बी अ सेकेंड मैक्सिमम एलिमेंट. उसका रीजन क्या है? द रीजन इज कि अगर गिवन एरे में मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट प्रेजेंट हुए तो फर्स्ट इंडेक्स पर भी मैक्सिमम एलिमेंट ही प्रेजेंट होगा उस केस में, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर इस गिवन एरे में यहाँ पर 4 की जगह 7 होता, सो आफ्टर सॉर्टिंग दिस एरे व्हाट विल हैपन? फर्स्ट इंडेक्स पे भी जो एलिमेंट आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 7, राइट? नाउ वी कैनॉट से दैट जो एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स पे है इट इज अ सेकेंड मैक्सिमम एलिमेंट. दैट विल बी नॉट करेक्ट, राइट? सो दैट मीन्स गिवन एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के बाद हमें ऐसा पहले एलिमेंट फाइंड करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट which is not equals to array of 0, because array of 0 में maximum element पड़ा होगा. So हमें इस sorted array में left to right ऐसा पहला element find करना है that is not equals to array of 0. Okay, because that will signify the second maximum element in this given array. And अगर हम इस sorted array की बात करें तो इसमें this element is the first element from left to right that is not equals to array of 0. Okay, so this will be treated as second maximum element. So this is the first approach to calculate or to find the second maximum element in a given array. And in this approach सबसे पहले हमने क्या किया? हमने given array को sort किया descending order में. उसके बाद हमने given array को traverse किया so that we can find the first element that is not equals to maximum element of this array, and maximum element will be equals to array of 0. So the time complexity of this approach will be n log n plus n. So देखो हमें n log n टाइम लगेगा given array को sort करने में, and then हमें n टाइम लगेगा to traverse the sorted array. So the overall time complexity of this approach will be proportional to n log n. Okay, so we can say that जो overall time complexity होगी that will be big of n log n. Okay. And in this approach we haven't used any extra space, therefore the space complexity will be constant. Now let us look at an efficient approach to solve this problem in which we will not do any sorting. Now suppose this is the integer array given to us in which we have to find the second maximum element. Now the idea is to traverse the given array 2 times. पहली बार हम इस एरे को ट्रेवर्स करेंगे एंड इन दैट ट्रेवर्सल वी विल फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द एरे. सो सपोज फर्स्ट ट्रेवर्सल के बाद जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट आएगा फॉर दिस केस इट विल बी इक्वल टू 7, राइट? देन इन द सेकेंड ट्रेवर्सल वी विल अगेन आइट्रेट दिस गिवन एरे एंड सेकेंड ट्रेवर्सल में हम ऐसा मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करेंगे दैट इज नॉट इक्वल्स टू दिस मैक्स. ओके, सो फर्स्ट ट्रेवर्सल के बाद हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट आ गया 7, देन वी विल अगेन ट्रेवर्स दिस एरे. सो लेट अस टेक अनदर वेरिएबल दैट इज सेकंड मैक्स.
and we will initialize this variable with the minimum possible integer value that can be stored in an integer variable. Okay, so let us call it as int min. So हमने सेकंड मैक्सिमम को मिनिमम पॉसिबल इंटीजर वैल्यू से इनिशियलाइज करवा दिया दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ इंटीजर वेरिएबल. नाउ लेट अस स्टार्ट द सेकंड ट्रेवर्सल. सो सबसे पहले हम चेक करेंगे फर्स्ट एलिमेंट से कि क्या ये वाला एलिमेंट जो है वो सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट से बड़ा है, बिकॉज अब इस ट्रेवर्सल में हमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है, बट दैट एलिमेंट शुड नॉट बी इक्वल टू दिस मैक्स एलिमेंट. ओके, सो यस दिस फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द करंट वैल्यू ऑफ सेकंड मैक्स. सो सेकंड मैक्स की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी 1. ओके, नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट एलिमेंट. सो हम चेक करेंगे कि क्या ये वाला एलिमेंट सेकंड मैक्स से बड़ा है. यस, सो दिस एलिमेंट इज ग्रेटर देन द करंट वैल्यू ऑफ सेकंड मैक्स. सो उसके बाद हमें देखो साथ साथ एक और चीज चेक करनी है कि ये जो एलिमेंट है क्या ये करंट वैल्यू ऑफ मैक्स के इक्वल तो नहीं है. सो दिस 3 इज नॉट इक्वल टू 7, देन ओनली वी विल अपडेट दिस वैल्यू एज अ सेकंड मैक्स. सो नाउ न्यू वैल्यू ऑफ सेकंड मैक्स विल बी इक्वल टू 3. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एलिमेंट. सो हम चेक करेंगे कि क्या ये एलिमेंट करंट वैल्यू ऑफ सेकंड मैक्स से बड़ा है. यस, दिस एलिमेंट इज ग्रेटर देन द करंट वैल्यू ऑफ सेकंड मैक्स, बट वी कैन नॉट अपडेट सेकंड मैक्स विद द वैल्यू 7 बिकॉज ये वाला जो 7 है इट इज ऑल्सो द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ दिस एरे. ओके, सो इसीलिए हम क्या कंडीशन चेक करेंगे हर बार कि क्या जो करंट एलिमेंट है जो ith इंडेक्स पे एलिमेंट है क्या वो सेकंड मैक्स से बड़ा है. सो इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन वी विल चेक अनदर कंडीशन एंड कि क्या जो करंट एलिमेंट है क्या वो सेकंड मैक्स से छोटा है. सो देखो बोथ द कंडीशंस विल बी करेक्ट. या तो हम लिख सकते हैं दैट एरे ऑफ आई शुड नॉट बी इक्वल्स टू मैक्स, और वी कैन राइट दैट एरे ऑफ आई शुड बी लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू दैट वी हैव फाउंड सो फार. ओके, सो बोथ ऑफ दीज कंडीशंस विल बी करेक्ट. सो इन दिस कंडीशन इफ दिस इज ट्रू देन व्हाट वी विल डू, हम सेकंड मैक्स को अपडेट कर देंगे with the value of ith index element. Okay, otherwise we will ignore that element and we will move to the next element. So इस केस में क्या होगा, हम सेकंड मैक्स की करंट वैल्यू को अपडेट नहीं करेंगे एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट. सो नेक्स्ट एलिमेंट के लिए चेक करेंगे कि क्या ये एलिमेंट सेकंड मैक्स की करंट वैल्यू से बड़ा है. सो दिस इज नॉट ट्रू, देन वी विल अगेन मूव टू नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज इक्वल टू 7. सो दिस एलिमेंट इज ग्रेटर देन द करंट वैल्यू ऑफ सेकंड मैक्स, बट इस केस में हमारी सेकंड कंडीशन ट्रू नहीं है, दैट इज ये वाली कंडीशन, बिकॉज दिस करंट एलिमेंट इज इक्वल्स टू मैक्स, इट इज नॉट लेस देन मैक्स, दैट इज वाई हम सेकंड मैक्स को अपडेट नहीं करेंगे. नाउ आफ्टर द ट्रेवर्सल वी विल चेक कि सेकंड मैक्स के अंदर अभी भी इंट मिन वैल्यू पड़ी है या नहीं. सो ट्रेवर्सल के बाद भी अगर सेकंड मैक्स के अंदर इंट मिन वैल्यू पड़ी है दैट मीन्स गिवन एरे में कोई भी सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, राइट. अदरवाइज वी विल प्रिंट द वैल्यू जो भी सेकंड मैक्स में पड़ी होगी. सो अगर सेकंड मैक्स में इंट मिन वैल्यू नहीं पड़ी ट्रेवर्सल के बाद भी तो हम वो वैल्यू प्रिंट करवा देंगे जो उसमें पड़ी होगी. ओके, बिकॉज दैट विल डिनोट द वैल्यू ऑफ सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट इन द गिवन एरे. सो दिस इज द सेकंड अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम and the time complexity of this approach is clearly big of and that is linear because हमने इस एरे को 2 बार ट्रेवर्स किया है therefore, और वो भी linearly ट्रेवर्स किया है, right. therefore the time complexity will be linear and the space complexity will be constant because no extra space is used. but देखो इस अप्रोच में हमने 2 बार इस गिवन एरे को ट्रेवर्स किया है, right. now let us look at the complete code for this approach. सो दिस इज अ कोड फॉर आर सेकेंड अप्रोच. सो देखो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फर्स्ट टाइम हमारे गिवन एरे को ट्रेवर्स किया सो दैट वी कैन फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द गिवन एरे एंड हमने मैक्सिमम एलिमेंट को इस मैक्स वेरिएबल में स्टोर करवा लिया. ओके, देन वी विल ट्रेवर्स द गिवन एरे सेकेंड टाइम. सो हमने एक सेकेंड वेरिएबल लिया जिसमें हम हमारे गिवन एरे के सेकेंड मैक्सिमम एलिमेंट को स्टोर करवाएंगे एंड वी हैव इनिशियलाइज दिस वेरिएबल विद द वैल्यू इंट मिन. And int min denotes the minimum possible value that can be handled by a integer variable. Okay. Now in the second traversal हम क्या कर रहे हैं, हर बार current element को check करते हैं कि क्या वो current value of second max से बड़ा है या नहीं. So if the current element is greater than the second max and that element is less than the maximum element of the given array, then हम second max को update कर देंगे with the value of current element. Okay. सो इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, इस कंडीशन में हम
सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं, एंड फॉर दैट हम हर एक करंट एलिमेंट को चेक कर रहे हैं कि वो करंट वैल्यू ऑफ सेकंड मैक्स से बड़ा है या नहीं, एंड एट द सेम टाइम वो एलिमेंट हमारे मैक्सिमम एलिमेंट से छोटा होना चाहिए या फिर उसके इक्वल नहीं होना चाहिए. सो बोथ द कंडीशंस आर करेक्ट. सो देखो इस सेकंड कंडीशन की जगह अगर हम लिखते एरे ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू मैक्स, so that is also correct, so that condition will also work. Okay, now after the second traversal हम सेकंड मैक्स के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो चेक करेंगे कि क्या वो वैल्यू अभी भी इंट मिन के इक्वल है या नहीं. सो अगर सेकंड मैक्स में अभी भी इंट मिन पड़ा होगा दैट मीन्स देर इज नो सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट दैट एग्जिस्ट्स इन द गिवन एरे. सो इन दैट केस वी विल प्रिंट डज नॉट एग्जिस्ट. बट अगर सेकंड मैक्स में इंट मिन नहीं पड़ा तो हम वो वाली वैल्यू प्रिंट करवा देंगे बिकॉज दैट विल डिनोट द सेकंड ग्रेटर एलिमेंट और द सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट प्रेजेंट इनसाइड द एरे. ओके, सो दिस इज द लॉजिक फॉर सेकंड अप्रोच. और इस अप्रोच में हमने 2 टाइम्स ट्रेवर्सल की है, तब हमें जाकर पता लगा है कि हमारे एरे का सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है. बट नाउ लेट अस लुक एट वन ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच जिसमें हम सिंगल टाइम ही गिवन एरे को ट्रेवर्स करेंगे एंड वी विल बी एबल टू फाइंड द सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट इन इट. ओके, now suppose this is the integer array given to us and in this we have to find the second maximum element. Okay, so सबसे पहले हम क्या करेंगे, we will take 2 variables max and second max and both of these variables will be initialized with the value int min. so हम इन दोनों variables को int min से initialize कर देंगे. Okay, now we will start traversing this array from left to right. हम इस array को left to right traverse करना start करेंगे. तो हमने 2 variables लिए हैं max and second max. Okay, and initially both of these variables are initialized with the value int min. Right? So हमने इन दोनों variables को int min से initialize कर दिया है. That is the minimum possible value that can be stored inside a integer variable. Now सबसे पहले हम ट्रेवर्स करके आएंगे इस जीरो इंडेक्स वाले एलिमेंट पे. हम चेक करेंगे कि क्या ये एलिमेंट हमारे मैक्सिमम एलिमेंट से बड़ा है, मतलब मैक्स के अंदर जो वैल्यू है क्या ये 1 उससे बड़ा है. यस, दिस कंडीशन इज ट्रू. सो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी सो हम सिंपली हमारे मैक्स को अपडेट कर देंगे. ओके, सो सबसे पहली कंडीशन हमने क्या चेक की है कि क्या जो करंट एलिमेंट है, क्या जो ith इंडेक्स वाला एलिमेंट है, क्या वो मैक्सिमम वैल्यू से जो अभी तक हम कैलकुलेट कर चुके हैं उससे बड़ी है या नहीं. सो इफ द कंडीशन इज ट्रू then we will update the maximum value. Okay, and at the same time उस केस में जो भी सेकंड मैक्स के अंदर वैल्यू पड़ी होगी उसे हम अपडेट कर देंगे with the previous value of max. So basically what will happen, so we will write a if condition. in this we will check कि क्या current element maximum element से बड़ा है. so if this condition is true in that case सबसे पहले हम हमारा सेकंड मैक्स अपडेट करेंगे with the करंट वैल्यू ऑफ मैक्स. सो उस केस में मैक्स में जो वैल्यू पड़ी होगी वो हम सेकंड मैक्स में शिफ्ट कर देंगे. ओके, बिकॉज अगर हमें न्यू मैक्सिमम एलिमेंट मिल गया सो जो करंट मैक्सिमम एलिमेंट था दैट विल बिकम द सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट. राइट, एंड वी विल अपडेट मैक्स विद द वैल्यू ऑफ करंट एलिमेंट. नाउ आफ्टर दिस कंडीशन वी हैव अपडेटेड मैक्स एंड सेकंड मैक्स. नाउ लेट अस कंटिन्यू द ट्रेवर्सल. सो वी विल कम टू दिस फर्स्ट इंडेक्स एलिमेंट. चेक करेंगे कि क्या ये मैक्सिमम एलिमेंट से बड़ा है. यस, दिस वैल्यू दिस एलिमेंट इज ग्रेटर देन द करंट वैल्यू ऑफ मैक्स. सो हम सबसे पहले सेकंड मैक्स को अपडेट करेंगे विद द करंट वैल्यू ऑफ मैक्स. सो देखो मैक्स में करंट वैल्यू 1 पड़ी है और सेकंड मैक्स में इंट मिन पड़ी है. सो हम अपडेट कर देंगे सेकंड मैक्स को विद द वैल्यू 1 एंड देन हम मैक्स को भी अपडेट कर देंगे विद द करंट वैल्यू ऑफ दिस एलिमेंट दैट इज 3. ओके, नाउ अगेन कंटिन्यूइंग द ट्रेवर्सल हम आ जाएंगे इस एलिमेंट पे. सो ये एलिमेंट भी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा है, जो अभी तक मैक्स वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं उससे बड़ा है. सो वी विल अपडेट मैक्स विद द वैल्यू 7. बट बिफोर दैट सबसे पहले हम सेकंड मैक्स को अपडेट करते हैं, देन हम मैक्स एलिमेंट को अपडेट करते हैं. सो सेकंड मैक्स विल बिकम इक्वल टू 3 दैट इज द प्रीवियस वैल्यू ऑफ मैक्स एंड न्यू वैल्यू ऑफ मैक्स विल बी इक्वल टू 7. एंड नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट एलिमेंट. सो नेक्स्ट एलिमेंट इज 2 एंड नाउ दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू. सो देखो जो ये थर्ड इंडेक्स पे एलिमेंट है 2. सो अब हम चेक करेंगे इसे कि क्या ये करंट वैल्यू ऑफ मैक्स से बड़ा है या नहीं. सो दिस एलिमेंट इज नॉट ग्रेटर देन 7 दैट इज द करंट वैल्यू ऑफ मैक्स. सो ये कंडीशन तो हो जाएगी फॉल्स. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज नाउ वी विल अप्लाई सेकंड कंडीशन. सो अब हम एल्स इफ कंडीशन अप्लाई करेंगे. इन दिस व्हाट वी विल चेक कि जो करंट एलिमेंट है वो मैक्स से तो बड़ा है नहीं.
बट क्या ये सेकंड मैक्स से बड़ा है या नहीं. सो दिस इज द सेकंड कंडीशन दैट वी विल चेक. सो एलसीएफ में हम चेक करेंगे कि क्या करंट एलिमेंट सेकंड मैक्स से बड़ा है या नहीं. एंड सो हमें साथ साथ ये भी कंडीशन चेक करनी है कि जो हमारा ith इंडेक्स वाला एलिमेंट है, जो करंट एलिमेंट है, दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू द मैक्सिमम वैल्यू दैट वी हैव फाउंड सो फार. ओके, सो इस एलसीएफ में हम क्या चेक कर रहे हैं कि अगर करंट एलिमेंट जो है वो सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट जो अभी तक हम फाइंड कर चुके हैं उससे बड़ा है, एंड जो करंट एलिमेंट है वो मैक्सिमम एलिमेंट के इक्वल नहीं है, देन वी विल अपडेट द वैल्यू ऑफ सेकंड मैक्स विद दिस करंट एलिमेंट. सो इस एलसीएफ में हम क्या करेंगे, सेकंड मैक्स को अपडेट कर देंगे. सो इन दिस वी विल अपडेट सेकंड मैक्स विद द वैल्यू ऑफ ith इंडेक्स एलिमेंट. सो बेसिकली इफ यू नोटिस हमने किया क्या है, हमने प्रीवियस अप्रोच में जो दो ट्रेवर्सल की थी, सो फर्स्ट ट्रेवर्सल में हमने ये वाली कंडीशन यूज की थी और सेकंड ट्रेवर्सल में हमने ये वाली कंडीशन यूज की थी. बट इन दिस अप्रोच हमने उन दोनों ट्रेवर्सल्स को मर्ज कर दिया है. ओके, सो दैट हमें सिंगल ट्रेवर्सल में ही पता लग जाए कि हमारे गिवन एरे में सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है. ओके, सो नाउ करंटली वी आर एट थर्ड इंडेक्स एलिमेंट, एंड थर्ड इंडेक्स एलिमेंट जो है वो मैक्सिमम एलिमेंट से बड़ा नहीं है. सो हम एलसीएफ कंडीशन चेक करेंगे. सो एलसीएफ में हम चेक करेंगे कि जो करंट एलिमेंट है क्या वो सेकंड मैक्स से बड़ा है. सो करंट एलिमेंट सेकंड मैक्स से भी बड़ा नहीं है. सो वी विल नाउ मूव टू नेक्स्ट एलिमेंट. नेक्स्ट एलिमेंट इज 7. सो दिस एलिमेंट इज नॉट ग्रेटर देन द करंट वैल्यू ऑफ मैक्स. सो वी विल कम टू एलसीएफ. एलसीएफ में जो हमारी पहली कंडीशन होगी दैट विल बिकम ट्रू. सो पहली कंडीशन में क्या है कि जो करंट एलिमेंट है क्या वो सेकंड मैक्स की करंट वैल्यू से बड़ा है. यस. नाउ वी विल चेक द सेकंड कंडीशन. एंड जो करंट एलिमेंट है वो मैक्स के इक्वल नहीं होना चाहिए, बट दिस कंडीशन विल नाउ बी फॉल्स बिकॉज जो ये करंट एलिमेंट है वो इस मैक्सिमम एलिमेंट के ही इक्वल है. सो व्हाट विल हैपन, हम इस एलसीएफ के अंदर नहीं जाएंगे. सो वी विल इग्नोर दिस एलसीएफ एंड द ट्रेवर्सल विल कंटिन्यू. So now we can see that we have completely traversed this array. So after traversing the array हम चेक करेंगे second max में क्या वैल्यू पड़ी हुई है. So second max में अगर int min वैल्यू पड़ी हुई then we will print does not exist, otherwise we will print the value that is present in second max. Okay, so this is the whole idea behind our optimized approach, जिसमें हमने सिंगल ट्रेवर्सल में ये फाइंड कर लिया कि गिवन एरे का सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है. So now let us move to the code for this approach. सो इन दिस अप्रोच सबसे पहले हमने क्या किया, हमने मैक्स और सेकंड मैक्स दो वेरिएबल लिए एंड वी हैव इनिशियलाइज दीज वेरिएबल्स विद द वैल्यू इंट मिन. देन वी हैव स्टार्टेड ट्रेवर्सिंग द गिवन एरे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सबसे पहली कंडीशन चेक की कि क्या करंट एलिमेंट मैक्स वैल्यू से बड़ा है. इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, सो सबसे पहले हम सेकंड मैक्स को अपडेट कर देंगे विद द करंट वैल्यू ऑफ मैक्स, एंड देन हम मैक्स को अपडेट कर देंगे विद द वैल्यू ऑफ करंट एलिमेंट. ओके, बट अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, सो अगर करंट एलिमेंट मैक्स से बड़ा नहीं है, सो हम चेक करेंगे कि क्या करंट एलिमेंट सेकंड मैक्स से बड़ा है. एंड इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन वी विल चेक वन मोर कंडीशन कि जो करंट एलिमेंट है क्या वो मैक्स के इक्वल है या नहीं. सो इफ द करंट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकंड मैक्स एंड इट इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू द करंट वैल्यू ऑफ मैक्स, देन वी विल अपडेट सेकंड मैक्स विद द करंट एलिमेंट्स वैल्यू. सो उस केस में हम सेकंड मैक्स को करंट एलिमेंट की वैल्यू से अपडेट कर देंगे. ओके, एंड आफ्टर द ट्रेवर्सल हम चेक करेंगे कि क्या सेकंड मैक्स इंट मिन के इक्वल है या नहीं. सो इफ द सेकंड मैक्स इज नॉट इक्वल टू इंट मिन देन हम उसकी वैल्यू प्रिंट करवा देंगे, अदरवाइज वी विल प्रिंट डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, सो क्लियरली द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच इज लीनियर एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज कांस्टेंट, दैट इज बिग ऑफ 1. So this is the optimized approach to find the second maximum element in a given array. So that's all for this video. Thank you everyone.